So good evening student. Today we are starting the one of the important topic for the UGC-NET management actually. ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल डूइंग सम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेसेस. बिकॉज कई सारे लोगों का क्वेरीज आई थी कि दे आर रिक्वायरिंग सम एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन वीडियो. So that is the only reason I am just making one video which is actually contains regarding the what the documents are required while doing some export and import businesses. Okay, so we are starting with the very few and very most of the important documents which is requiring for the international businesses. So these are the commercial documents which we have classified in two parts, in export documentation and the auxiliary documents. Okay. So in our export document we have the commercial invoice, then packing list, then bill of lading, then insurance certificate, certificate of origin, bills of exchange. And while talking about the another part that is called performa invoice, we have intimation for inspection, we have shipping instructions, insurance declaration, and last that is called made receipt. तो हम लोग एक एक करके इसको कवर करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, so firstly we are starting with the commercial invoice. The commercial invoice is a bill of the goods. So it will be because all those documents whatever I have written down in a very first slide, so it's all about under the commercial invoice. ठीक है, so commercial invoice is a bill for the goods from the seller to the buyer. These invoices are often used by the government to determine the true value of the goods when assessing the custom duties. Means when the sellers are sending some document to the buyers which consists the value of the goods, it's all about the commercial invoices. So commercial invoice is all about the mainly requiring for some custom clearance and some other concerned bodies which is actually requiring for to export and import businesses. So this is the type of the commercial invoice. Whatever I put it down, I put it down some images of all the documents. Yes, first that is called packing list. The packing list refers to the particular of the contents of an individual pack, while the packing list is a consolidated statement of the contents of a number of cases or packets, and it should include the packing note number, data packing, name and address of the exporter, name and address of the importer, order number, date, shipment, bill of lading number, date, marking number, and the contents of the goods in terms of the quantity and the weight. Normally 10 copies of the packing notes should be prepared. The first to be sent with the shipping documents, 2 copies in advance to the buyers and once to the shipping agent, and remaining retained by the exporter. Means packing list is all about key. It's an individual packet. Suppose that whatever the product we are consisting, so we will make the different and the individual packing list which will consist the packing, the date of the packing we have to put it down, किस दिन हमने उसको पैक किया था, and who is the exporter who is actually sending the products. Because जैसे कि हम लोग पूरा दुनिया में पानी के जहाज से शिप से हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक कंटेनर में कई अलग अलग एक्सपोर्टर के भी सामान हो सकता है, एक्सपोर्टर्स के भी अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं. तो दैट इज द ओनली रीजन. अगर इफ देयर इज it can be happen, the mishappening. So on the basis of the packing list we can recognize who is the exporter and what is the address of the exporter, name and the address of the exporter, importer, order number, what are the order numbers. Order number importer ने दिया होगा ना कि मतलब कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा. That is the only reason we are exporting our product to the suppose that is importer is sitting at China and we are exporter at sitting at India. तो इम्पोर्टर ने कोई ऑर्डर किया होगा तो कोई ना कोई उस पर ऑर्डर नंबर जनरेट होगा, डेट क्या है, शिपमेंट क्या है, बिल ऑफ लीडिंग नंबर क्या है. ठीक है, तो these are the things which consist the packing list. ठीक है, तो ये जैसे हम लोग बनाते हैं कि डेट ऑफ द शिपर हो गया, हमारा कंट्री ऑफ द एक्सपोर्ट हो गया. ठीक है, तो इसमें जितने भी आइटम्स हैं वी कैन पुट इट डाउन हियर. नेक्स्ट हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बिल ऑफ लीडिंग. बिल ऑफ लीडिंग हम लोग मेड रिसीट के बाद बनाते हैं. बिल ऑफ लीडिंग इज कहीं ना कहीं हम लोग रिसीव करते हैं हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स product. So bill of lading is the official documents prepared by the carrier duly accepting the goods for shipment, containing the informations like items, quantity, value, vessels detail, date, port, consignor, consignee. Bill of lading is a contract to carry the goods to the said destination based on the which seller can claim considerations and buyer can take
delivery of the goods. Means whenever the buyers are receiving those goods or importers are receiving those goods, so they are receiving those goods on the basis of the bills of lading. तो bill of lading में कई सारी इंफॉर्मेशन होती है जिसमें हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्वांटिटी कितना है, आइटम्स कौन सा है, वेसल्स डिटेल क्या है, डेट क्या है, किस पोर्ट से आया है, किस पोर्ट पे जाएगा, कंसाइनर कौन है, कंसाइनी कौन है, ठीक है. इट इज एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बेसिकली फॉर कैरिंग द गुड्स टू द सेड डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन विच सेलर कैन क्लेम द कंसिडरेशन एंड बायर कैन टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द बिल ऑफ lading. ठीक है, तो ये हमने आपको इसमें एक एग्जाम्पल में एक तौर पे आपको इसमें पुट किया है बिल ऑफ lading. ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया इंश्योरेंस सर्टिफिकेट. इंश्योरेंस हम लोग को पता ही है कि वाई वी आर ऑप्टिंग फॉर द इंश्योरेंस. सो वी आर ऑप्टिंग फॉर द इंश्योरेंस जस्ट बिकॉज ऑफ कि कोई एक मिस हैपनिंग होती है जिससे कि हम लोग उसको प्रोटेक्ट कर सकें. तो इंश्योरेंस है पॉलिसी फ्रॉम ए लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स ए पर्सन, कंपनी और अदर एंटिटी रिइंबर्समेंट और financial protection against possibilities future losses or damage. Because भाई यहाँ से हम if we are exporting our goods from India to China, so it might take to 2 to 3 months sometime. So it can be any mishappening in between. So that is the only reasons we have required some protection authorities. मतलब कुछ ना कुछ हमारे पास एक प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट्स के लिए हम लोग कुछ ना कुछ चाहिए होगा, जिसलिए हम लोग इंश्योरेंस करा लेते हैं जिससे हमारी एक सिक्योरिटीज हो जाती है. तो दिस इज द टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इंश्योरेंस. सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन. सर्टिफिकेट ऑफ द ओरिजिन बहुत जरूरी है क्योंकि सपोज दैट यू आर सेंडिंग योर गुड्स फ्रॉम इंडिया टू सपोज दैट लेसोथो और तंजानिया इन साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, तो कई सारे बॉर्डर से होकर जाएगी. तो पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन क्या है, किस ओरिजिन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना हुआ है. तो डॉक्यूमेंट दैट क्लैरिफाई ए शिपमेंट कंट्रीज ऑफ ओरिजिन. It is a used member of trading blocks where the special privilege are granted to the goods produced in a certain countries. So certificate of origin is commonly issued by the trade promotions offices or chamber of commerce in the exporting country, also called declaration of the origin. देखिए हम आपको बताते हैं क्यों सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जरूरत बहुत ज़्यादा है. एक तो ये हो गई सपोज और क्योंकि विदाउट द रिकॉग्निशंस, विदाउट द दिस सर्टिफिकेट वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से ये प्रोडक्ट आया है. दूसरा क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया था रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में कई सारी कंट्रीज ने दे फॉर्म सम रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ PTAs, इन द फॉर्म ऑफ कस्टम यूनियन, इन द फॉर्म ऑफ what we call free trade agreement. They form some common market, they form some economic unions. So sometimes they form some trading blocks. What they are doing in a trading blocks, they are giving some relaxations in a tax, relaxations in a duties. तो आप सपोज आपको पता है कि कुछ कंट्री आपस में मेंबर हैं and they have relaxed those taxation policies between those countries. Then what will happen if suppose that any countries who belongs to those trading blocks, तो कहीं ना कहीं वो अपने फ़ायदा लेने के लिए उनको बताएंगे कि भाई ठीक है इंडिया और मान लीजिए चाइना के ट्रेडिंग ब्लॉक के मेंबर हैं, तो दे हैव नेगोशिएटेड जस्ट बिकॉज ऑफ टू रिलैक्सेशंस ऑन टैक्सेस ड्यूटीज. तो पता कैसे चलेगा ऑल दोज पर्सन हु आर सिटिंग एट चाइना पोर्ट, दे मस्ट नो ना कि प्रोडक्ट आया कहाँ से. तो दैट इज द ओनली रीजन वी हैव टू पुट इट डाउन सर्टिफिकेशन ऑफ द ओरिजिन, प्रोडक्ट कहाँ से शिप हुआ है. तो दिस इज द टाइप ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. फिर आए बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो पता है हम लोग जो बिल्स जनरेट करते हैं किसी के अगेंस्ट में. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन ऑर्डर बाय द ड्रॉअर टू द ड्रॉई टू द पे मनी टू द पे. मतलब लोग पैसा लेना है तो कहीं ना कहीं भाई कुछ ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो जनरेट करने पड़ेंगे ना. कोई अगर नगद पैसा नहीं दे रहा है, इफ इट्स ऑन द आपको दे विल मेक द पेमेंट वंस दे विल रिसीव द प्रोडक्ट, है ना. उसने ये बोला इंपॉर्टेंट है कि हम एक बार प्रोडक्ट रिसीव करेंगे देन वी विल मेक द पेमेंट. तो कहीं ना कहीं हमको वी हैव टू बी जनरेट सम बिल्स, है ना. कुछ ना कुछ तो कुछ बी रिक्वायर सम इंस्ट्रूमेंट ना, जिससे कि एक पता चल जाए कि वो पेमेंट करेगा बाद में. देयर शुड बी सम सर्टेन डॉक्यूमेंट विद योर सेल्फ ऑल्सो, जिससे कि कहने की गारंटी बनी रहे. तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए रिटन ऑर्डर बाय द ड्रॉअर टू द ड्रॉई टू पे मनी टू द पे. द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज चेक. चेक पता है हम लोगों ने चेक दे दिया, पोस्ट डेटेड चेक दे दिया कि आज हम पेमेंट कर रहे हैं, आपको 2 महीने बाद आपको प्रोडक्ट रिसीव होंगे, तो आपने आगे की डेट का हमने आपसे चेक ले लिया. विच इज डिफाइंड एज ए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन ए बैंकर एंड पेबल ऑन द डिमांड. Bills of exchange are used primarily in the international trade and or written order by one person to his banks to pay the bearer a specific sum on a specific date sometimes in the future. जैसे हमने आपको बताया कि आज आपने प्रोडक्ट भेजा, 2 महीने बाद चाइना पे पहुंचेगा. चाइना वाला बोला कि नहीं, once I'll receive a payment then I'll make a payment.
तो उन्होंने बोला कि जब हम प्रोडक्ट रिसीव करेंगे देन आई विल मेक एन पेमेंट। तो उसमें क्या होगा कि आपने गारंटी के तौर पर कुछ ना कुछ लिखे, तो आप बोले ठीक है एक चेक आप लिख कर दे दो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मान लीजिए पहुंचेगा 20 सितंबर को, तो आप 22 सितंबर 24 सितंबर का अपनी बैंक से एक ड्रॉन करवा दीजिए, एक चेक पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारे पास एक गारंटी तो रहेगी ना एक्सपोर्टर के पास। तो दिस इज द एग्जाम्पल सैंपल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। Now there are few auxiliary documents starting the pro forma invoice, then intimation for inspection, then shipping instructions, then insurance declaration, then made receipt. So firstly we are starting with the pro forma invoice. Pro forma invoice is always prepared by the exporter and is sent to the importer for acceptance. कहीं ना कहीं ये जैसे कि एक होता है ना, हम लोग कोटेशन भेजते हैं, एक्सपोर्टर एक इसको बनाएगा कि दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू सेंड, ये प्रोडक्ट का आइटम्स का डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक तरफ प्राइस लिख दिया और इंपोर्टर को भेज दिया। इंपोर्टर उसको एक्सेप्टेंस कर लेगा, उसके बाद ही कोई एक्सपोर्टर प्रोडक्ट भेजेगा। तो प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर हैंड इज सेंट टू द इंपोर्टर फॉर द एक्सेप्टेंस, सेंट इन एडवांस टू द बायर बिफोर द शिपमेंट इज मेड। सीधी सी बात है भाई, आप शिपमेंट से पहले नहीं भेज सकते, शिपमेंट से पहले प्रोफार्मा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार प्रोफार्मा इनवॉइस भेजेंगे, इंपोर्टर उसको रिसीव कर लेगा, उसके बाद ही आप उसको पेमेंट करेंगे ना, उसके बाद ही आप उसको गुड्स भेजेंगे। तो दैट इज द थिंग, प्रोफार्मा इनवॉइस इज जस्ट लाइक ए कोटेशन व्हाट वी एक्चुअली यूज इन अ नेशनल ट्रेड। समझिए प्रोफार्मा इनवॉइस एक बार और बता रहे, प्रोफार्मा इनवॉइस होता है कि पहले एक्सपोर्टर ने एक प्रोफार्मा भेज दिया, उसमें डिटेल्स लिख दिया, डिस्क्रिप्शन लिख दिया प्रोडक्ट का, प्राइस लिख दिया और इंपोर्टर को भेज दिया कि दिस मेनी प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू सेंड, दीज आर द प्राइसेस। इफ इंपोर्टर ने उसको रिसीव करके एक्सपोर्टर को वापस भेज देगा। एंड इनवॉइस इंक्लूड डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट टू बी सप्लाइड, दैट क्वांटिटी वैल्यूज इंक्लूड फ्रेट इंश्योरेंस चार्जेस, मेथड ऑफ द पेमेंट, पेमेंट का मोड कौन सा रहेगा, क्वालिटी क्या है, कंडीशंस ऑफ सेल, वट एवर द कंडीशन, जस्ट लाइक एन अग्रीमेंट, प्री अग्रीमेंट वी आर डूइंग बिफोर मेकिंग एनी ना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया डॉक्यूमेंट्स हमारा इंटीमेशन फॉर द इंस्पेक्शन। बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए वी आर हैविंग द डिफरेंट अथॉरिटीज हु इज एक्चुअली इंस्पेक्टिंग द प्रोडक्ट बिफोर एक्सपोर्टिंग एनी प्रोडक्ट। तो सर्टिफिकेट ऑफ द इंस्पेक्शन इज इशूड बाय द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज अंडर द एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल इन द इंस्पेक्शन एक्ट 1963, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं हम लोग पहले क्वालिटी चेक करते हैं एज पर द एक्ट 1963, उसके बाद ही वी कैन एक्सपोर्ट दोज प्रोडक्ट टू द फॉरेन कंट्रीज। तो गुड्स शुड बी एक्सपोर्टेड ओनली आफ्टर द इंश्योरिंग दैट दे आर ऑफ प्रॉपर क्वालिटीज और नॉट। हमने आपको बता ही दिया, जैसे WTO में बताया था बहुत सारे लोगों ने डंपिंग के चक्कर में दे हैव एंटी डंपिंग ड्यूटीज, तो वी कैनॉट सेंड below standard quality product, otherwise they can put it down some anti-dumping measures and it can be the violation of the trade also। तो फिर WTO उसको इंटरवेन करेगा। तो दैट इज द ओनली रीजन कि बिफोर सेंडिंग एनी बिफोर मेकिंग एनी एक्सपोर्ट, फर्स्टली वी शुड check for the certificate of the inspection. If the quality of the goods are not satisfactory, it will affect the image of not only the buyers but the whole nations। सीधी सी बात है। शिपिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से आपको चीज़ों को ध्यान देना है। गुड्स में भी एक्सपोर्टेड टू द फॉरेन मार्केट, भाई सी से भेज सकते हैं, एयर से भेज सकते हैं, पोस्ट हो गया, लैंड हो गया। नेक्स्ट हो गया शिपिंग बाई सी में ऑब्टेन द परमिशंस ऑफ द पोर्ट अथॉरिटीज, ठीक है। हम लोगों को पोर्ट, जिस पोर्ट से हम लोग भेज रहे हैं उसकी हम लोग उससे परमिशंस लेना पड़ेगा। ओवरसाइड लोडिंग हो गया, जेटी एट पोर्ट हमको मिलता है, पोर्ट कमीशंस क्या हैं, ठीक है, रिवर ड्यूज हो गया, बॉलरम हो गया, फिक्स टोल्स हो गए, रेंट्स हो गए। तो वट एवर द पोर्ट्स कमीशंस जो भी हैं वो हम लोग को एक देनी पड़ेंगी। लेट शिप ऑर्डर हो गया, फिर मेट रिसीट एक कैप्टन बनाता है, जो भी शिप का कैप्टन होता है वो लोग मेट रिसीट बनाते हैं। बिल ऑफ लीडिंग अलॉन्ग विद द मेट रिसीट इज सबमिटेड टू द शिपिंग बिल फॉर कैलकुलेटिंग द फ्रेट चार्जेस। शिपिंग बाय एयर हम लोग वही सामान बेचते हैं तो बहुत हाई वैल्यू वाले होते हैं, पेरिसेबल आइटम्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल ही 2 दिन 4 दिन की होती है, या मेडिसिन की हम लोग बात करेंगे। वॉल्यूम कम होता है बट प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसके, इंश्योर द क्विकर डिलीवरी, सीधी सी बात है, आप अमेरिका भी 8-10 घंटे में सामान बेच सकते हैं आप। पेमेंट इज रिसीव क्विकली, सीधी सी बात है, इफ इंपोर्टर विल रिसीव द प्रोडक्ट एट अ वेरी शॉर्ट टेन्योर, तो दे हैव टू बी मेक द पेमेंट ऑल्सो। इन्वॉल्व्स लोअर पैकेजिंग चार्जेस, लेस हैंडलिंग ऑफ द गुड्स इन ट्रांजिट टाइम भी कम होता है तो हैंडलिंग चार्जेस भी कम होते हैं, ठीक है। डैमेजेस के चांसेस भी कम होते हैं। शिपिंग बाय पोस्ट हम लोग कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स हमने पोस्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड पोस्ट। पार्सल शुड बी कवर्ड बाय द प्रॉपर एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो वी आर हैविंग द डिफरेंट एक्सपोर्ट अथॉरिटीज इन इंडिया, तो वी हैव टू बी टेक द प्रायर परमिशंस ऑफ दोज एक्सपोर्ट अथॉरिटीज। Filling of the parcel constitute for no claim for the compensation or refund on account of postage.
शिपिंग बाय लैंड, जैसे कि कुछ कंट्रीज के बॉर्डर्स ले हुए होते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं बाय रोड भी प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, AR फॉर्म 4 हो गया, AR फॉर्म 4A हो गया। ठीक है, तो AR फॉर्म इट्स ऑल अबाउट द ARE फॉर्म, एप्लीकेशन ऑफ द रिमूवल एक्साइज की हम लोग बात करते हैं। बहुत सारी कंट्रीज में हम लोग क्या करते हैं कि एक्साइज से रिमूव करना, एक्साइज से हमको बचा रिबेट लेनी पड़ती है, तो वी हैव टू बी अप्लाई दिस फॉर्म यूज फॉर द अप्लाइंग फॉर द एक्साइज इंस्पेक्शन एट द फैक्ट्रीज। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड शिपिंग बाय लैंड। फिर इंश्योरेंस डिक्लेरेशन हो गया। इंश्योरेंस डिक्लेरेशन इज ऑल अबाउट द एक्सपोर्ट गुड्स मे बी सब्जेक्टेड टू द मेरीटाइम पैरल्स, द रिस्क इज पैरल्स कवर्ड अंडर द मरीन इंश्योरेंस। होता है कि एक इंश्योरेंस डिक्लेरेशन देंगे कि क्या क्या हमारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की, कौन सा प्रोडक्ट किया, उसकी वैल्यूज़ किया, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसका इंश्योरेंस कराएंगे और इंश्योरेंस की डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ेगी। फिर दिस इज कॉल्ड मेट रिसीट। मेट रिसीट आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत पहले ही हम लोग बनाते हैं। इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय द शिपिंग एजेंट। कहीं ना कहीं आपका जो एक वो होता है, आपका कैप्टन होता है शिप का, वो मेट रिसीट बनाता है। इट इज इशूड बाय द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप। मतलब कुछ सामान आपने पोर्ट से कार्गो उस पर शिप पे रखेंगे तो उसको वो बनाएगा कि वो कैप्टन होगा या कमांडिंग ऑफिसर होगा, वो कहेगा दीज मेनी प्रोडक्ट वी हैव रिसीव्ड। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट हैंडेड ओवर टू द पोर्ट ट्रस्ट ऑफ द अथॉरिटीज फॉर पेमेंट ऑफ द पोर्ट ड्यूज। ठीक है, क्योंकि भाई पोर्ट ड्यूज भी उसके बाद ही करेंगे ना हम लोग, पोर्ट के जितने भी ड्यूज होंगे वी हैव टू बी मेक द पेमेंट। आफ्टर पेमेंट ऑफ द ड्यू इट इज गिवन टू द मर्चेंट। एक बार आपने पेमेंट पोर्ट के पे ड्यूज क्लियर कर दिए, फिर हम लोग मर्चेंट को दे देंगे। ए मेट रिसीट कंटेन डिटेल्ड अबाउट द नेम ऑफ द वेसल्स, डेट ऑफ द शिपमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पैकेजेस, मार्क्स, अगर कोई मार्क्स उसमें कुछ आपने कोई उसमें सिंबल लगाया हुआ है। So this is all about all the document whatever I have told you. If anybody is having any doubt, please may ask in the comment section. Please do like and subscribe my video if you are liking my. Okay, thank you so much.